Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Unit number 5. The Great Masjid of Cordoba. Cordoba is a city in Andalusia in the south of Spain. कुर्तबा इंदलस का एक शहर है जो स्पेन के जनूब में वाक़या है। इस्लाम reached Spain. इस्लाम स्पेन में उस वक्त पहुंचा when तारिक बिन ज़ियाद conquered it in 711 AD. जब तारिक बिन ज़ियाद ने 711 ईस्वी में इसे फतह किया। In those golden days of Islam, इस्लाम के उन सुनहरी दिनों में कोडोबा became the intellectual and cultural center of Europe. कुर्तबा यूरोप का इल्मी और सकाफती मरकज बन गया। People from all over the Europe would come to Cordoba for learning arts, science and philosophy. पूरे यूरोप से लोग फनून, साइंस और फलसफा सीखने के लिए कुर्तबा आया करते थे। It was an era, ये वो दौर था, when the Iberian Peninsula was clattering with progress and advancement of Muslim civilization. जब जजीरे नुमा आइबेरिया मुस्लिम तहजीब की तरक्की और उरूज से जगमगा रहा था, whereas the rest of Europe had sunk in the dark ages, जबकि बाकी यूरोप तारीकी के ज़माने में डूबा हुआ था। It was this knowledge and enlightenment of Cordoba, ये कुर्तबा का इल्म और रोशनी ही थी, which gave birth to the Renaissance, जिसने निशात सानिया को जन्म दिया, a movement for a revival of art and learning in Europe, जो यूरोप में फनून और इल्म की तजदीद की तहरीक थी। मस्जिद कोडोबा is the living symbol of the past glory of Islam and dominance of Islamic civilization in Europe. मस्जिद कुर्तबा इस्लाम की गुज़श्ता शान व शौकत और यूरोप में इस्लामी तहजीब के गलबे की जिंदा अलामत है। The masjid was founded by Abdul Rahman I in 784. ये मस्जिद 784 ईस्वी में अब्दुल रहमान अव्वल ने कायम की, who after the fall of the Umayyad dynasty escaped to southern Spain, जो उमवी सुल्तानत के ज़वाल के बाद जनूबी स्पेन आ गए थे। When once there he established and consolidated his control over almost the whole of the Iberian Peninsula. वहाँ पहुँचकर उसने तकरीबन पूरे जजीरे नुमा आइबेरिया पर अपना कंट्रोल कायम और मजबूत कर लिया। In Cordoba he attempted to recreate the glory and grandeur of Damascus, the capital of the Islamic State. कुर्तबा में उसने दमिश्क, जो इस्लामी सुल्तानत का दारुल हुकूमत था, की शान व शौकत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। He erected magnificent buildings, promoted agriculture and imported fruit trees and olive lands from his former home. उसने शानदार इमारतें तामीर की, ज़राअत को फ़रोग़ दिया और अपने साबिक़ा वतन से फलदार दरख्त और जैतून के पौधे मंगवाए। Even though the masjid was founded in 784 AD by Abdul Rahman, अगरचे मस्जिद 784 ईस्वी में अब्दुल रहमान ने बनाई थी, but the expansion and enlargement of the masjid was carried on by his successors. लेकिन मस्जिद की तवसी और वसअत इसके जाननशीनों ने जारी रखी। This magnificent masjid, a jewel of Islamic architecture, was finally completed by Abu Amir al-Mansur in 976. ये शानदार मस्जिद जो इस्लामी बनी तामीर का एक नगीना है, बलाखिर 976 ईस्वी में अबू आमिर अल-मंसूर ने मुकम्मल की। The structure of the masjid comprises of a large hypostyle prayer hall. Hypostyle means filled with columns. मस्जिद का ढांचा एक बड़े हाल पर मुश्तमिल है, जिसे सतूनों से भरा हुआ हाल हाइपोस्टाइल कहते हैं। A courtyard with a fountain in the middle, एक सहन जिसके बीच में फुआरा है। A covered pathway circling the courtyard, एक ढका हुआ रास्ता जो सहन के गिर्द घूमता है। And minaret which is not visible now, और एक मीनार जो अब नजर नहीं आता, because of it being encased in bell tower, क्योंकि वो गंती के मीनार में छुप गया है।
Allama Iqbal paid a visit to the Masjid Qurtuba in 1933. Allama Iqbal ने 1933 में मस्जिद कुर्तबा का दौरा किया. This visit was not an ordinary visit of an average tourist interested in ancient monuments. ये दौरा किसी आम सयाह का कदीम यादगारों में दिलचस्पी रखने वाला मामूली सा दौरा नहीं था, but a pilgrimage to an outstanding symbol of faith by a faithful believer and visionary poet. बल्कि एक मोमिन और बसीरत रखने वाले शायर की तरफ से ईमान की शानदार अलामत की ज़ियारत थी. The sight of the masjid transported him into the golden age of Islam. मस्जिद का मंजर उसे इस्लाम के सुनहरी दौर में ले गया, which provided roots to the enlightenment of Europe, जिसने यूरोप की बेदारी की बुनियाद फराहम की. These strong feelings resulted in creation of one of his superb poems, the Masjid Qurtuba. ये गहरी खिफियात उसकी एक शानदार नज़म मस्जिद कुर्तबा की तख्लीक का सबब बने. ए हरम कुर्तबा, इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा द्वाम, जिसमें नहीं रफ्त वबूद. To ishq you owe your being, O हरम of कुर्तबा. ए कुर्तबा की मस्जिद, तेरा वजूद इश्क का कर्जदार है. To ishq that is eternal, never waning, never fading. इश्क जो अवधि है, न कभी कम होता है, न कभी मिटता है. The most consummate and accomplished structure of the masjid is its prayer hall. मस्जिद की सबसे कामिल और शानदार तामीर इसका नमाज पढ़ने वाला हॉल है. The hall is erected with 857 columns. ये हॉल 857 सतूनों पर कायम किया गया है. From which sprout an amazing two-tiered symmetrical arches, जिनसे हैरतअंगेज दो मंजिला मतवाजिन महराबें उभरती है. These arches are made of stone and red bricks. ये महराबें पत्थर और सुर्ख ईंटों से बनी है, giving strong chromatic effect to the interior of the prayer hall, जो नमाज गाह के अंदरूनी हिस्से को ताकतवर रंगारंग असर अता करती है. The multiplicity of the column in the prayer hall so amazed इकबाल. नमाज गाह में सतूनों की कसरत ने इकबाल को इस कदर हैरान किया that he expressed his feeling in these words, कि उन्होंने अपने जज्बात इन अल्फाज में बयान किए. तेरी बिना फायदार तेरे सतून बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे नखील. Your foundations are lasting, your columns countless. तेरी बुनियादें फायदार है, तेरे सतून बेशुमार है. Like the profusion of farms in the plains of Syria, जैसे शाम के मैदानों में खजूरों की कसरत. The focal point in the prayer hall is the famous horseshoe arched mihrab and the qibla wall of the mihrab. नमाज गाह का मरकजी हिस्सा मशहूर नालदार महराब और इसकी क़िबला दीवार है. The arch and the qibla wall of the mihrab are decorated with the inscription of two lines of calligraphy in Gothic style, both on the top and on either side of the arch. महराब की महराब और इसकी क़िबला दीवार को खूफी खताती के दो सतरों से सजाया गया है, जो ऊपर और महराब के दोनों अतराफ में लिखी गई है. The mosaic of the two lines of calligraphy has blue background with gold letters. इन दो सतरों की मोज़ाइक खताती का पस मंजर नीला है और हरूफ सुनहरी है. Where is the single line of the calligraphy immediately over the arch is mosaic having golden background with blue letters in Gothic script. जबकि महराब के बिल्कुल ऊपर वाली एक सतर की खताती मोज़ाइक में है, जिसका पस मंजर सुनहरी और हरूफ नीले खूफी खत में है. The mihrab is decorated with gold tracery and repeated flowing design of plants. महराब को सुनहरी टुकड़ों और पौधों के बार बार दोहराने वाले बहते हुए नक्श व निगार से सजाया गया है. Reflecting dark blue, reddish, brown, yellow and golden rays of light that charms the visitor with its beauty. जो गहरा नीला, सुर्खी माइल, भूरा, पीला और सुनहरी
रोशनी की किरणें मुनाकिस करता है और अपनी खूबसूरती से देखने वालों को मशहूर कर देता है। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A dazzling doom pours over the a dazzling doom pours over the मेहराब। मेहराब के ऊपर एक शानदार गुंबद मौजूद है। It is built of criss-crossing ribs। ये आपस में जुड़ी हुई पसलियों से बनाया गया है। That create pointed arches जो नुकदार मेहराबे बनाती है। All lavishly covered with gold mosaic in a radial pattern। और सबको पियाजी के साथ सुनहरी मोज़ाइक से शुआई अंदाज में ढांपा गया है। The addition of ribs to the vault of the dome has not only given strength to the dome, गुंबद के खोल में पसलियों के इजाफे ने न सिर्फ गुंबद को मजबूत बनाया है, but also provided a fascinating decorative technique in the form of a rose formed by interlacing ribs, बल्कि जुड़ी हुई पिसलियों से बने हुए गुलाब की शक्ल में एक दिलकश आराइशी तर्ज भी बरामद किया है। The Masjid of Cordoba is a superb example of the magnanimity of the Muslim civilization। कुर्तबा की मस्जिद मुस्लिम तहजीब की अजमत की एक शानदार मिसाल है। To create an architectural masterpiece on pre-existing regional traditions, जिसने पहले से मौजूद इलाकाई रवायात पर एक फनी तामीर का शाहकार तख्लीक किया। It is an extraordinary combination of familiar and innovative। ये मानूस और जिद्दत अंगेज चीज़ों का एक गैर मामूली इम्तिजाज है। Which can be recognized as Islamic even today। जिसे आज भी इस्लामी के तौर पर पहचाना जा सकता है। After the fall of the Muslims in Spain में मुसलमानों के ज़वाल के बाद the masjid was converted into a cathedral in 1246 AD। 1946 ईस्वी में मस्जिद को एक गिरजाघर में बदल दिया गया। And a giant nave was built in the center of the masjid। और मस्जिद के वस्त में एक बहुत बड़ा हॉल तामीर किया गया। Upon completion of the cathedral, King Charles the Fifth visited the area for first time and remarked। गिरजा घर की तकमील पर बादशाह चार्ल्स पंजम पहली बार इस जगह आया और उसने कहा, We have built what other might have built elsewhere। हमने वो तामीर किया है जो दूसरे कहीं और कर सकते थे। But we have destroyed, लेकिन हमने ऐसी चीज़ तबाह कर दी, something that was unique to the world, जो दुनिया के लिए यकता थी। इकबाल was so moved by the magnificence of the masjid। इकबाल मस्जिद की अजमत से इतने मुतासिर हुए that he saw the traces of the इश्क of those who built it, कि उन्होंने इसे बनाने वालों के इश्क के आसार देखे। इश्क according to इकबाल is the burning desire to do one's utmost। इकबाल के मुताबिक इश्क एक जलती हुई ख्वाहिश है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करे। To achieve one's ideal of perfection and self-realization through the moral teaching of Islam। इस्लाम की अखलाकी तालीमात के ज़रिए अपनी कामिल मिसाली शख्सियत और खुदी की तकमील हासिल करने के लिए। It was this uplifted passion that made Muslims of that area extend their dominance to far off lands। ये बुलंद जज्बा था जिसने उस दौर के मुसलमानों को दूर दराज इलाकों तक अपने गलबे को फैलाने पर मजबूर किया। इकबाल expressed his tiding in these words। इकबाल ने अपने जज्बात इन अल्फाज में बयान किए हैं, मगर इस नश्क में रंग सबात दवाम, जिसको किया है फ़कत मर्द खुदा ने तमाम। मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग़। इश्क है असल हयात, मौत है इस पर हराम। Yet there exists a hue of eternity in this imprint। फिर भी इस नक्श में अब्दियत का एक रंग मौजूद है। The one that has been completed by some man of God। वो नक्श जो किसी मोमिन इंसान ने मुकम्मल किया। The action of the man of God gets accelerated with इश्क।
मोमिन इंसान के अमाल इश्क से तेज हो जाते हैं। द एसेंस ऑफ लाइफ इज इश्क, डेथ इज फॉरबिडन फॉर इट। जिंदगी का जौहर इश्क है, इसके लिए मौत ममनू है। इकबाल attributes the beauty and grandeur of this magnificent masjid। इकबाल इस शानदार मस्जिद की खूबसूरती और अजमत को मंसूब करते हैं टू द इंटेंस इश्क ऑफ मर्द खुदा के शदीद इश्क को, विच स्टिल emanates फ्राम द premises ऑफ दिस मस्जिद, जो अब भी इस मस्जिद के इहाते से महसूस होता है। तेरा जलाल व जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलाल व जमाल जिससे है हक की दलील। योर ग्रैंडेवर एंड ब्यूटी मैनिफेस्ट द मैन ऑफ गॉड। तेरी अजमत और खूबसूरती मर्द खुदा की अक्कासी करती है। ही टू इज़ एमिनेंट एंड हैंडसम, यू टू आर एमिनेंट एंड हैंडसम। वो भी मुमताज़ और खूबसूरत है और तू भी मुमताज़ और खूबसूरत है। द मस्जिद ऑफ कोडूबा is one of the finest works of art and fantastic display of इश्क। मस्जिद कुर्तबा फ़नून के बेहतरीन शाहकारों में से एक और इश्क की शानदार नुमाइश है, which can be accomplished only when a person मर्द खुदा is at the exalted state of moral and spiritual character, जो सिर्फ उस वक्त हासिल की जा सकती है जब एक शख्स मर्द खुदा अखलाकी और रूहानी किरदार की आला हालत में हो। We can achieve this again। हम इसे दोबारा हासिल कर सकते हैं if we enkindle in ourselves the master passion the इश्क, अगर हम अपने अंदर इस अला जज्बे इश्क को जला दें। Another name of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideals, जो अपने मिसाली मकासद को हासिल करने के लिए मुसलसल और मुखलिसाना जदोजहद का दूसरा नाम है।